My dear friends, I'm Sayyid Nawaib Kaisar, and you are watching SHQ Radio Active, a YouTube channel in which we discuss about youth, we discuss about career, education, social affairs, mostly development and progress of youth. If you have seen some of the videos on this channel, we talked about the education through internet also some time ago. We talked a lot about sports as well, and previously we were talking about facing an interview. The basics of facing an interview was our topic. I said that time round we'll be covering it in 5, 6 episodes. First episode is over. You can have a look at it whenever you want on SHQ Radioactive. But we're coming up with second episode. First episode concerned attitudes, and then positivity, preparation, a recce of the place, meeting people, reading, gathering knowledge, and making a positive effort to succeed. And also something like that you have been called for an interview, that means you deserve to be there. Have that confidence in you. It's not that everybody is called, you are called, that means you have something special in you. Now, this special person is now going to enter the room where the interview is going to take place. And mind it, you'll be seen first before you speak. Yes, you'll be seen first. And when I say you'll be seen first, we talk of dresses. How to dress up for the interview, for the occasion. And dressing up is important, since I said you will be seen before you talk. And it's important to know what to wear for which interview and present a well groomed look. When I said which interview, the interview, the position, the company culture, the institution, the dress may vary with it at times. So beware of that. Talk to people who have been through the process, they might help you. Or go around, I said last time round also, around the company and see, or the institution, or the department, or the institution, or educational institution, what usually people wear there. And what are their formal dresses and what are their informal dresses. And dress accordingly. That's important. And whether you wear a suit for men or something less formal depends on, as I said, company culture, the department, the position, the culture, the place you are seeking in the institution or the department or the company. If possible, find out before interview, as I said. Wear clothes that you can carry. Do not wear the clothes that carry you. So you must be thinking ये क्या बोल रहा है कि कपड़े तो मैं ही पहनूंगा, मैं ही कैरी करूंगा, कपड़े कैसे मुझे उठा के चलाएंगे। देखिए बात सीधी सी और सिंपल सी है कि मैंने जिंदगी भर कभी टाई और सूट नहीं पहना है, तो मैं इंटरव्यू के लिए 3 पीस सूट पहन के जा रहा हूँ। मैं सारे टाइम मेरी गर्दन को ये हो रहा है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अनईजी हूँ, क्योंकि ये ड्रेस मैंने कभी पहना नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आप अनईजी ना हो। अगर आपको ये पहनना ही है उस पोजीशन के लिए, उस कंपनी के लिए ये ड्रेस, तो आप वही ड्रेस और वैसे ड्रेसेस पहन के 5-7 बार घूमिए, दोस्तों से मिलिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, जब तक आपको उस ड्रेस की आदत हो जाए। You start feeling comfortable in that very dress which you are carrying. Then you will be carrying a dress, not the dress will be carrying you. Same applies to women also. Wear a dress which you feel comfortable in, which is more or less formal, and which does not attract more attention than you. Because in an interview, you deserve more attention than your dress. If invariably they ask about your dress or keep on looking at it, you deserve better shot than that in an interview. आप वहाँ गए कि आपकी काबिलियत, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज बाहर आए, यहाँ तो ड्रेस की बात हो रही है। इससे बचने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, और बच सकते हैं आप, ये कोई बुरी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि यू डिजर्व मोर अटेंशन देन योर ड्रेस। ड्रेस ऑल्सो डिजर्व अटेंशन। इट्स अ नीट एंड क्लीन ड्रेस, अच्छी तरह प्रेस किया हुआ ड्रेस, बाल बने हुए ठीक से, नाखून कटे हुए, हाथ साफ सुथरे, बूट पॉलिश किया हुआ, और कोई गॉडी ड्रेस नहीं है, रंग बिरंगी नहीं। औरतों के केस में थोड़ा सा मेकअप जिससे आप कंफर्टेबल लगें, ठीक लगें, और ये है कि आपका लुक बेटर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। कोई ज़्यादा जेवर की ज़रूरत नहीं है, कोई उस वक्त ही फैशन स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं है। इनके सब मेल ऑल्सो,
टाइप इन और कफ लिंक वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी का प्रेसिडेंट ले रहे हैं तो अलग बात है। तो उसके बगैर एक और कहूँगा मैं आपको, एक और चीज़ कहने की बात है ये, वेल ग्रूम्ड लुक इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड इज ऑलवेज वेलकम and gives a good feeling and impression to those who are talking to you. Well groomed look, आप साफ सुथरे नीट लगते हैं, बस यही काफ़ी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक और चीज़ है, जस्ट रिमेंबर इट, इंटरव्यू इज़ नॉट अ प्लेस टू मेक अ स्टेटमेंट अबाउट अ ड्रेस, अबाउट योर कल्चर, अबाउट योर कस्टम्स, अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर हिस्ट्री, कि हमारा हम ये ड्रेस भूल गए इसलिए मैं आज पहन के आया हूँ, हमारे बाप दादा पहनते थे, हमारे कस्टम था अब नहीं है, मैं दिखाना चाहता हूँ। नहीं, अगर ऐसा कोई है कल्चरल इवेंट वहाँ आपको लेना है तो फिर ठीक है, नॉर्मली कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो पोजीशन है, जो कंपनी कल्चर है, जो डिपार्टमेंट है, जो ओकेजन है, वो डिमांड करता है अपने तरीके का ड्रेस, उसमें ये कल्चरल स्टेटमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती और बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए ड्रेस के मामले में। Once the dress part is over, have a trial run to the place where interview is going to take place, from where you live, you reside, or you are staying at that very moment. Have a trial run 2-3 times. And normally at the time when you are supposed to be at the interview, अगर आपको 11 बजे इंटरव्यू पे पहुंचना है, रोज सुबह 9 बजे या 10 बजे या जो भी आप बेहतर टाइम समझते हैं वहां पहुंचने के लिए, उसमें 2-4 बार जाइए वहां, इसलिए कि आपको पता चलेगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं किस टाइम पे कब पहुंच सकता हूँ, मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा। ये एक बड़ा मामला रहता है इसमें कि आप टाइम पे पहुंचें, इससे एक लोकेशन पता चल जाएगी, ट्रेवल का टाइम पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, टेंशन दूर हो जाएंगे, रास्ते में क्या क्या आता है आप सब जाएंगे, और इससे ये पता चलेगा कि आपको घर से कब निकलना है। ये बात हो गई आपकी। बी पंक्चुअल इन द इंटरव्यू, ये बड़ी मस्त बात है, वक्त पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पहला माइनस पॉइंट हो जाएगा, इवन इफ यू आर फार टू इंटेलिजेंट इन एवरीथिंग यू हैव, you are late for an interview, your name has been called but you could not reach. In case of calamity, a rare case, that's something different. You have to, on your way you have to face something. Otherwise the kitchen demands that you be on time, all the time on time. You know, you have to go to say third floor, you are running, huffing and puffing, you reach there and they said your name has been called and you breathlessly go into the room for interview. How would you perform? Or you have just now reached, after 2 minutes they call you, you have not gathered yourself as yet. How will you feel? Will it not affect your performance? You also know, as much as I know, it will affect your performance. One, and two, it will not give a good impression to them as well. So be punctual and reach on time, very important. Carry a decent portfolio, ठीक ठाक, जिसमें आपकी जो चीज़ें डॉक्यूमेंट लेने हैं वो आ सकते हैं, साफ़ सुथरा हो, ठीक सा हो, नोट पैड एक हो, उसमें पेन एक आध हो, अगर पेंसिल की ज़रूरत है पेंसिल हो, सम टेस्टिमोनियल्स जो आपको ज़रूरत है वो हैं, और टेस्टिमोनियल्स को भी तरतीब से रखा जाता है, तरतीब से ये रखा जाता है, उनको फ्लैग किया जाता है, अगर हो सके अलग कलरों में, कोई पैसा नहीं लगता है, वो स्लिपें मिलती हैं कलर में, इस पर लिखा एकेडमिक्स, उस पर लिखा स्पोर्ट्स, इस पर लिखा कल्चरल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फिर आप अगर सोसाइटीज़ के सोसाइटी मेंबरशिप बाकी, तो वो चीज़ें आपने जो उनने वो रंग देखा खोला तो वहाँ वही चीज़ सामने आ गई इस पोर्टफोलियो में, जिसने अगर देखा। बहुत सी केसेस में उनके पास ऑलरेडी आपकी डिटेल होती है, वो डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट करना पड़ा तो वो लुक भी ऐसा दे कि उनको लगे कि ये आदमी ऑर्गेनाइज्ड है, और ऑर्गेनाइज्ड पहुँचना, ऑर्गेनाइज्ड होना और ऑर्गेनाइज इंप्रेशन देना इंटरव्यू में एक बड़ा प्लस पॉइंट है किसी के लिए भी। अब जब एंट्री की बात आई, आपका दाखिला होना कमरे में, यू हैव टू एंटर द रूम, मेक श्योर you walk into the room oozing with confidence and professional friendliness. Oozing with confidence does not mean you are overconfident. No. To put it in other way, अगर उर्दू में आपको बताऊं, भीगी बिल्ली बन के नहीं घुसना है ऐसे, सर आई कम इन वो ये ऐसे नहीं घुसना है। अरे आपको बुलाया गया क्योंकि आप वहाँ पहुँचने के लायक हैं, इसलिए आप वहाँ आए, तो आप ऐसे ही बात करेंगे ना, कि आने के लिए कहेंगे मैं आ रहा हूँ, आएंगे, अंदर घुसेंगे, दाखिला आपका होगा, दैट्स
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्रोफेशनल फ्रेंडलीनेस दिखाएंगे आप इंटरव्यू में जब अंदर होंगे. स्माइल इज द बेस्ट एक्सेसरी यू कैन कैरी. दरवाजा खोला, थोड़ा मुस्कुराया, इतना नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगा लुक प्लेजेंट है आपका. और डोंट ओवर डू इट, द स्माइल पार्ट. थोड़ा सा प्लेजेंट लुक है और आप कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं. उनको भी लगा कि बंदा डरा हुआ नहीं है, हरेस्ट नहीं है, गुस्सा है, ऐसे ऐसे हो रहा है इसको, ये मुस्कुरा रहा है, यानी ही फील्स हैप्पी टू बी हियर बिकॉज ही नोज समथिंग विच ही वांट्स टू डिलीवर और शी वांट्स टू डिलीवर. ये एंट्री की बात है. डोंट रश इनटू द रूम. दौड़ के जाके घुस जाना नहीं है, तेरे से जाना है कंफर्टेबली. आप कंफर्टेबल हैं, आपको बुलाया गया है वहाँ, अच्छी तरह घुरे. अगर नॉक करना है, पोलाइटली नॉक किया, दरवाज़ा खोला, अंदर गए और इंटरव्यू करिए, ग्रीट करिए इंटरव्यूअर्स को. जो नॉर्म हो, जो रिवायत हो और जो तरीका हो, उस हिसाब से. अलग जगह अलग वेरी कर सकता है. कुछ यूनिवर्सल हैं सलामें, या कुछ यूनिवर्सल ऐसी चीज़ें हैं कि वो एक्सेप्टेबल हैं हर सोसाइटी को. वैसी ये ग्रीटिंग भी हो सकती है, हेलो भी हो सकता है, प्रोफेशनल है ये. एक स्माइल तो है ही है ग्रीट करने के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट. इसके बाद देखिए, आप आए वहाँ से, ड्रेस वेस की बात हो गई, दाखिला हुआ, अंदर बैठे. बैठने के पोस्चर्स की बात करेंगे कि सिटिंग पोस्चर क्या होगा आदमी का. जब वो इंटरव्यू में आया, सिटिंग पोस्चर इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाउ यू विल सिट इन द इंटरव्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर आप ऐसे हैं, आप घर में करके देखिए. दिस इज अ डिफेंसिव पोस्चर. This will curb your instincts as well while speaking, and this is a defensive posture in which whatever is thrown at you or whatever is asked, you push it back. It's a posture. It affects your psychology like that. ये defensive posture ना बने. अगर बाजू हैं उसके, कुर्सी के बाजू पे हाथ रख सकते हैं आप, कोई बात नहीं. ऐसे सामने हाथ रखे आपने बाजू पे, और अगर हाथ हिलाने बीच में हिलाइए, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाइए, हिलाइए, मगर ये कॉन्शियस नहीं है मैं ज़्यादा कम हिला रहा हूँ. थोड़े बहुत हिलते हैं, नॉर्मली हिलने दीजिए जैसे मेरे हिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं. और अगर बाजू नहीं है उसके कुर्सी के, तो हाथ ऐसे गोद में रखिए सामने. अब बैठेंगे, हाथ नीचे गोद में रखा, हाथ बीच में उठाया, बीच में ये किया ऐसे. और हैंड और बॉडी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो कॉन्फिडेंस भी बताती है और वो पॉइंट भी बताती है. लेकिन डोंट पॉइंट फिंगर, ऐसे ऐसे नहीं करने का, और ऐसे भी नहीं करने का इंटरव्यू. नो, डोंट डू दैट. यू वोंट डू दैट, आई नो, बट ये याद रखना चाहिए कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि चढ़ जाती है, फिर ये करता नहीं करना है. कभी वो भी एक टेस्ट होता है. तो बात आगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे. आज का आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे, फेसिंग एन इंटरव्यू एपिसोड 2 ऑन SHQ रेडियो एक्टिव. अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैंने कहा, और अगला पॉइंट है, अब बातचीत शुरू हो गई. नाउ यू आर एट इट, इंटरव्यू शुरू हो गया, बातचीत शुरू होगी. पहला काम क्या है? लिसन. जो वो पूछेंगे वो सुनिए पूरी. वो सुनना बहुत जरूरी है. यू लिसन टू व्हाट दे से. जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है, वो जल्दबाजी में जवाब ना दें. लिसन टू इट फर्स्ट केयरफुली. और जस्ट माइंड इट, फ्रॉम द बिगिनिंग द इंटरव्यूअर will be giving out information to you. He'll be giving out information. These questions also include information which you can use. You will be getting information either directly or indirectly from the panel. Or if you are not hearing them well, you are missing a major part of opportunity. Well, they are saying something, they are talking to you, they want to know something, they have to say something. That also includes information on which you can develop. Maybe they talk to each other at times. You hear that. Don't butt into it. Let them finish it. Then come up with a question or whatever statement they have or whatever they are asking. Don't get into it, what they are talking. You overhear them. Yes, no, मैं बताऊंगा, आप ये कह रहे थे. Don't do that. Wait. But listen to whatever they are saying. Once you listen well, you reply well. That's the most important part to begin with in an interview. Good communication skills always when we talk of, and when we talk of good speakers also, in both cases, they are good listeners. And those who are good listeners are able to speak well as well. Here is a situation where you have to listen to answer. So you should get the question right. You can ask them also,
एक्सक्यूज मी सर, वुड यू माइंड प्लीज रिपीटिंग इट और समथिंग, आई कुड नॉट गेट इट। उसमें कोई शर्म नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप बोलेंगे, लेट द पर्सन नो एंड हियर व्हाट यू आर सेइंग। अपने साथ बात नहीं करनी, ऐसी आगे देख के बात करनी है कि वो आपकी बात सुन रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो क्लियरली सुन रहा है। उनको ये ना करना पड़े आपने क्या कहा, जरा फिर से बोलेंगे, नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, जब अपने कॉन्फिडेंस है तब आप मर मर के नहीं बोलेंगे, विल बी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। थिंक ऑफ द प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर इज वेल, कि आगे मुझे मिलेगी नौकरी या नहीं मिलेगी, मैं सिलेक्ट होऊंगा इस ट्रेनिंग के लिए, इस कोर्स के लिए, इस इंस्टीट्यूशन में। ये मत सोचिए, उस वक्त की बात ही सोचेंगे, तभी आप उस बात का सही जवाब दे सकेंगे। ये बहुत अहम है आपके लिए, हम सब के लिए। अब जब मैंने कहा कि आप जवाब देंगे, जवाब दिया बंद कर दिया। डोंट लीव द आंसर लिंगरिंग। अब बोले जा रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती आपको रोक दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डोंट लीव इट लिंगरिंग, you finish your answer, stop. Then let them, if you have a counter question, let them ask it. If they want to proceed again, go back in that direction, let them be. मगर आप फिनिश करेंगे अपना, इसलिए मैं कहता हूँ डोंट टॉक टू मच, लपेटने की कोशिश ना करें। बेसिकली टेलिंग एन इंटरव्यूअर मोर देन he or she wants to know could be a mistake also. You may end up saying things about which you do not know that much, and they may keep asking about it. And then there's another way also. When you finish an answer which is related to something else at which you are very good, you give a hint of that while closing. Well, basically, it happened like this, and then usually that also happens. Don't say it. They may ask you, what did you say that happens? What does that happen? Because you are good at it. In a way, you are guiding them, but this cannot go long in all the questions. But some questions, you can guide them. उनको भी समझ नहीं आता है, और बहुत उनको समझ भी आता है, वो भी उस्ताद होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं अब इसने हमें वहां लिया है, ये बेहतर जानता होगा, इस चीज के बारे में पूछ ले। उसको अलाउट नहीं करना है। अगर अलाउट कर लिया कि हमने तो ये पूछा नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं, आप वहां लाके छोड़ दीजिए। अगर वो पूछना चाहते हैं तो पूछेंगे, और आपको बेहतर पता है, आप बेहतर जवाब। ये बात है, ये बड़ी अहम है आपके लिए, हम सब के लिए। When you have not prepared well, you ramble. मैंने वो गोलमोल कोशिश एक, और जैसे मैंने पहले कहा, अपने साथ बात करते हैं, इसलिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जिस दिन अप्लाई किया उस दिन से प्रिपरेशन करते हैं, वो शुरू में मैंने पहले एपिसोड में कहा था। आप प्रिपेयर्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपको वो डर नहीं है, और जो वो पूछ रहे हैं आप जवाब दे सकते हैं तो आप देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक और बात है, मैंने बॉडी लैंग्वेज की पहले बात की, आपके हाथ हिलाना वगैरह, एक आई कांटेक्ट हो तो अच्छा, सामने देख के, घूरना नहीं है, देख के, और कभी सर भी ठीक है, लेकिन सारे टाइम जी जो भी you are not going to, you are not there to please them. People pleasing has an inbuilt failure. चमचागिरी नहीं शुरू करनी, वो नहीं लेते हैं चमचा, आप कितना भी मान ले नहीं लेते। आप कितने अच्छे हो गए यार, क्या ये डिसीजन लेगा, ये क्या फैसले लेगा, ये यहाँ में कुछ करने लग गया। तो इसीलिए ऐसी ऐसी कोशिश नहीं करनी है। और वर्बल नॉन वर्बल नॉड्स वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट है, वो सब तरफ देखते हैं। डोंट शेक योर हेड विगरसली आल्सो, नॉड किया, हाँ मैं समझ रहा हूँ, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे, हाँ हाँ मेरी सुनिए, ये नहीं कोई करता, करना भी नहीं, ये इसकी जरूरत भी नहीं है आपको करने की। फेशियल एक्सप्रेशन में आई कांटेक्ट दोनों में, आपके मुंह पे क्या एक्सप्रेशन आते हैं वो देख, वो 5-6 हैं, आप अकेले एक ना एक नोटिस कर ले। खौफ ना हो, डर ना हो, साथ में घबराहट सारी बड़ी से पता चलती है, वो ना हो, और साथ में ऐसा ना हो कि आप लग रहे हैं डेस्परेट, ऐसा भी। फेशियल एक्सप्रेशन हो काम एंड कूल, मुश्किल है, मानता हूँ, इज नॉट अ यूजुअल सिचुएशन, इट्स नॉट नेचुरल सिचुएशन, लेकिन कूल एंड काम, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, well groomed, well dressed, you are there, you mean business, you will behave like that, you will behave well. And trust yourself, you can behave well. And you can deliver on all these points. मैंने कहा से आंख मिला के बात करनी अच्छी, की तरफ देख के बात करनी अच्छी,
अगर एक ने और दो ने इकट्ठे सवाल पूछ लिया तो एक से कहिए कि would you mind waiting for some time? We would like to reply this gentleman first. उर्दू में भी बोल सकते हैं, अब ऐसी बात नहीं है, मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ प्लीज वगैरह मे वगैरह कहना है, वहाँ नहीं, प्लीज वेट नहीं कहना है, प्लीज वेट भी ऑर्डर, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई एम टॉकिंग टू हिम, ये नहीं कहना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे कहा वैसे ही आप कर सकते हैं बिहेव, और हम बिहेव करते हैं। देखिए एक और चीज इसके साथ रिलेटेड है, कुछ को अजीब लगे, अगर आप लाइफ में ऐसे हैं कि आप प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो नॉर्मल बातचीत है उसमें एक तहजीब है, एक तमीज है, तो आपको वहां ज्यादा खर्चा नहीं कि आप गलत बात बोल रहे। हाँ ये तो पता हो सब्जेक्ट वगैरह आप तैयार, लेकिन गलत बोलने का चांस कम हो जाता है। अगर आप नॉर्मली ऐसे नहीं है, आप कहते छोड़ो यार, क्या शुक्रिया करना है किसी का, क्या थैंक यू बोलना है, क्यों प्लीज बोलूंगा, तो आपको फिर वहां खतरा लग जाता है। तो आपको वो नॉर्मल बिहेवियर है, जो प्रोसेस है, वहां तो एक अजीब प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। Well, I think we'll be ending this episode here, episode number 2, facing an interview. We talked of appearance, dressing up, and then we talked of reaching the interview place, then sitting and posture and listening. Next time round, we'll talk about how to deal with questions also, and some more things related to basics of interview on this very channel, SHQ Radioactive. And you can write your questions on this very channel. You subscribe to it, write your questions, and then I'll get to you after some episodes. And we'll have an episode in which I'll answer these questions on this very channel, whichever reason from these past episodes. Have a good time. Enjoy yourself. If you are preparing for an interview, mind these things, and you can add some also. This is not the end all and be all. Thank you very much for joining me again on SHQ Radioactive.